سار وختي خلک خرابوي ظالمان داسې دنګ د دنګ دنګ راغشتي که نه چې سړی وي چې بس د یخ یخنیانو کې ورته معده تاو راتاو شي. السلام علیکم، ګډ مارننګ، په خیر راغلی، ستړي مه شئ، څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې. د خیبر ټول لیدونکي چې په نړۍ کې چرته هم ژوند تېري هغوی ته نیکې پرزونې او د خوشحالو نه ډک سلامونه. خوشحالونه ډک ځکه چې ډسمبر میاشت آلموسټ په ختمېدو باندې ده اینډ د نوي کال آمد دی، تیاریانې دي، خوشحالۍ دي، سیلیبریشنز دي. نو سیلیبریشنز چې کله هغه وي که نه داسې 3 میاشتې متپرتې وي، کله کور د چا کور کې واده خادم وي که نه، نو دا چې د انتظار دا میاشت وي که نه دا ډېرې په خوشحالۍ تېرېږي چې خوشحالي را روانه خوشحالي راغی. هغه چې بیا ختم شي هغه هر څه نو خلک وایي دې نه هغه تمه ښه وه که نه، بیا د هغې رغی نو خلک بیا وي دې نه هغه تمه ښه وه. نو دغه شانتې د نوي کال دا خوشحالۍ اصولا عموما خو ټول ته پته زموږ نوی کال چې دی نو اسلامي کال کلنډري کال چې دی هغه اسلامي کال چې دی هغه د محرم د لومبني تاریخ نه شروع کېږي. خو چونکې نیو ایئر دا کلنډري کال وي نو دې ته چې دی بیا د خلکو ډېر زیات انتظار او د ورلډ وایډ سیلیبریټ کېږي که نه. نو ځکه دې ته بیا خلک چې دی نو مختلف ځایونو ته ځي، ملکونو ته ځي، ښارونو ته ځي خپلو خپلوانو سره. نو ما ځکه د وایي چې د خوشحالو آمد دی. ډسمبر چې دی نو دا ځان له یو افسرده د 2 کلونو په منځ کې چې دی یو برج دی، یو داسې کال چې تاله صرف میموریز درکوي او یو داسې کال را روان چې تاله یو هوپ یو امید درکوي. نو دا د برج د پل غوندې کار کوي. نو دا کله کله ډېر خفګان هم ځان سره یوسي. دا ډسمبر دا میاشت کله چې دی نو دا بس هغه وایي ډسمبر میاشت چې دی نو مخکې په بارانونو په یخنیانو په واوره باندې به دې باندې ډېرې شاعري کوي. اوس خو بارانونه هم نشته، الله دې رحم وکړي په موږ باندې. خو کو باران وي، کو سیلۍ وي، کو ګلۍ وي، کو خشکي وي، د ځان خیال ساتل ډېر زیات ضروري وي. کو هغه هر قسمه حالات وي ځکه چې بیمارۍ داسې بیمارۍ راغلي چې هغې د چا خبره موږ نومونه هم نه دي اورېدلې. نو د هغې دپاره دا چې ستاسو امیونټي، ستاسو فزیکلي تاسو هیلدي یې، تاسو فټ یې، نو تاسو باندې بیمارۍ اثر نه کوي. او د هغې دپاره بهترین چې کوم دي هغه واک، ایکسرسایز او دا شی نه. نو موږ سره په ایکسرسایز کې زموږ بهترین فټنس ټرینر وي موږ سره. اوس مې حلیمه د خولې نه وتلې هنسا غیور د موږ سره. السلام علیکم، څنګه جوړ الحمدلله تاسو ښه یې؟ او که نه کوڅه نه وینې زړه ته وایي چې all well دا خبره ده څنګه هنسا ویک څنګه تیر شو؟ الله شکر دی میم ډېر ښه تیر شو ماشاءالله. تاسو خپل حلوای فټ فاټ او زه چې کله ستا هغه واړه کلیپس ګورم که نه چې هغه شوز نه والې او هغه اپلوډ کړي نو هغه بیا ماله نور هم خوند راکوي ځکه چې پوره پروګرام اکثر موږ خپله مونږ ګورو خو هغه چنکس چې ګورو بیا ډېر ښه وي او هغه ماشاءالله ډېر خلک خوښوي او ډېر مې اپریشیټ کوي. نو ما ته نوره موټیویشن ملاوي چې زه نوره محنت وکړم. دیټس نایس. نن موږ ډېر زبردست ایکسرسایز راوړي دي، نیوټریشن باندې به خبرې کېږي، اویر میسج اویر چې کوم ایکسرسایز دي په هغې باندې هم خبرې اترې کېږي. خو راځئ چونکې هنسا همیشه هیډ ټو ټو ایکسرسایز تاسو له وروړي. بالکل اول سټریچنګ اینډ دین وارم اپ. بالکل چې څنګه موږ دې سره هر ویک زو د هر ویک باندې کې موږ دې ته د هر ویک ایکسرسایزز ورکو. پهله موږ آی نه سٹارټ کړو، آی کې پهله دې زموږ سټریچنګ او وارم اپ چې دا ضروري دی او چې دا ضروري دی. د دې نه بغیر به دې ایکسرسایزز نه سٹارټ کوي. دا وایي که نه څه وته لازم او مظلوم اچھا جی ما موبایل را واغشتو خو اسې مې واپس مې زر د یرې نه کېښودو مې صرف ته ښکاره نه شم خوا خو سرکاري ادارو باندې پرایویټ ادارو باندې دا خبره ده. اوس مې مینه دي چې موږ چې کوم روټیشن کوو هغه موږ 4 ټایم کوو. کېدای شي زه دلته د ټایم د وجې نه زه ډېر زیات 4 ټایم ورته نه کم کور. نو دې ته چې موږ وایو چې 4 ټایم روټیشن کولی او 1 ټایم صرف سټریچنګ کولی. دا چې کوم موږ مسل سټریچ کوو دا 1 ټایم دی. او دې څه د خسته مسل سټریچ شي ډېر خسته آرمز د ایکسرسایز کړي دي که نه مې سره ډېر زبردست دي. دې چې صرف دا سټریچنګ هم کوي که نه دې ته خپله باډي کې چینجز فیل کېږي. زه خپله چې د شپې روټین زما 10 o'clock پورې لاست کلاسز وي نو چې هغه وکړم زه خپله هم په هماغه ځای باندې خپل سټریچنګ وکړم دا یې نه په زوده کېږم ډېر زیات باډي ریلیکس شي. اوکې دا بیفور یعنې د ایکسرسایز نه بیفور ایکسرسایز سټریچنګ دې ته کول وي پاسېدول وي دا به د وارم اپ نه پیلم وي. دا خو زه لږ زر لګیم تاسو ورکې 10 to 15 seconds ریسټ کوئ. ښه اوس دا یو شو. دې چې کله مې مینه دا کوي که نه دې ته به خپله باډي کې خپله فرق فیل کېږي چې د دې دا چې اوکې او ایکسرسایزو کې څه فایدې وي چې دا ونه کې ایکسرسایزو کې څه فایدې وي. اوس میم زموږ سټریچنګ کمپلیټ شو، وارم اپ ته به ځو. وارم اپ کېدای چې لږ فاسټ ایکسرسایز وشي، لږ باډي ورغه شي، ګرمه شي एकदम ګرمولو دپاره وارم اپ وي. ټیک شو چې دا چې موږ وارم اپ وکړو که نه نو چې کوم ایکسرسایز موږ دې نه پسې چې مې مینه هغه د باډي
چې کم مسلز دی ډیپ پوری زی کومه دانی کړي ایکسرسایز واچو نو باډي پہلا ام پاغه ایکسرسایز کې ځان ګرم کې باډي انټرنل پوری نه هټ کیږي دیٹ از ضروری دی एक्टिव شي وسره एक्टिव شي وسره انسان ورسره एक्टिव شي باډي ګرم شي وارم اپ شي غریب باډي تیار شي راځه سختی شروع شي دا خبره سختی وی کنه څنګه چې ماشومان ساري سکول ته ځي او یو سخت نه تیریږي دغه خبره باډي چکل او چکل یوز شي نو دا هم یو نشي غونډه کار کوي بالکل چې کله به ایکسرسایز نه شي کنه مې دا سي چې ته چې مانس پاتې او باډي د عین زیات پین کوي چې کوم ایکسرسایز کو هغه کې کم پین کوي د عین زیات پین کوي زیات کوي ځکه چې باډي غواړي ها دا خو ځل تک د ټایم مطابق زم دی بچ دی 2020 یو سیټ کور کوي نو بلوچ به زره دکھا دې legs arms یعنی ټول فل باډي وارم اپ شو لګیا فل باډي وارم اپ کیږي وسره او دا شو اوس دا لاست جمپینګ جیک ته وداوت جمپ کوي وداوت جمپ خو چې کوم ایکسپرټي اور الریډي ایکسرسایز یوزر دی او باډي سره کوي او هغه به جمپ سره زی اوکے چې کوم نیو دی هغه به داسې سلو هغه به سلو زی اوکے دن هو گیا دا زموږ یو راوند کمپلیټ شو مې مینا عمدہ کا شانتی به دی 3 راوندز لګئی 3 راوندز لګئی چې 3 راوندز لګيږي دا تقریبا د دې سټریچنګ وارم اپ سره او سره د دې مطلب سټریچنګ او وارم اپ دا ټول د دې 15 منټس جوړيږي نو 15 منټس کې باډي خسته وارم اپ شي ډن هو گیا هاینی او لونی لینګو شو بیا دا هاینیز دی بیا بټ کیک دی دا بټ کیک شو لکه شاته چې تاسو دا کیک کوي نه هغه اور دا جمپینګ جیک اوکے دا ټول د وارم اپ ایکسرسایز دی دا ټول د وارم اپ ایکسرسایز دی دا تاسو چې ما خو بس ایکسرسایز کو خبره ختم شو بعض ټایم داسې راځي چې موږ په صرف وارم اپ کو کنه نو دی وي چې بس دا ایکسرسایز کو موږ کو کنه دا ایکسرسایز نه دا وارم اپ نه راځي مونږ باندې خو چې په کوم ورځ لیگز دی وی کنه او بیا لیگز کوارډینیشن دا وارم اپ دومره زیات را باندې ډیر زیات او لیگز دی کیا سیم بیا خلک ډیر دغی د سره د ګرځيږي نه او هغه کوم چې دی دا تاسو چې کله تاسو هر دغه کې وای واټر انټیک چې واټر انټیک خیال ساتي کنه نو بیا چې کم کرایمز راځي هغه شانتی نه چې کله زموږ باډي کې هایډریشن کمیرا شي او باډي کم پین کوي هغه شانتی نه ورسري باډي خي بیا دا ډیر ضروری دی حجی او ایکسرسایزز بنن فل باډي ټارګټ وی خاص ایریاز دی ها اوس چې دی مم زموږ چې کم ایکسرسایز برازي وارم اپ زموږ کمپلیټ شو اوس پر زموږ د کارډیو سایډ تا کارډیو سایډ ته چې راځو نو آی کې موږ 4 ایکسرسایزز دي تا هر ویک روړو چې کارډیو ایکسرسایز دي 4 وی نو موږ ته بل ویک بیا چینج کو هغه کې به موږ فل باډي ټارګټ کو د هډ نواله د لیگز پورې ټول باډي ټول A to Z هر مسل ورک راځي آی کې موږ فرست ایکسرسایز دغه کو سٹارټ جمپ کې ګوري وته دی چې څوک نشیتلې وذ جمپ اور وذ ویټ نو داسې وځي دی پوزیشن کې اپ بیا ډاون بیا دی پوزیشن کې اپ ډاون دی پوزیشن کې اپ ډاون دی پوزیشن کې اپ اوس چې اچھا د نیز مسلې وی هغه د کوارټ سکواټ باندې لاړ شي دومره پورې اپ هغه د صرف د کندو پورې راځي ضرورت نشته د لاندې د ډیر زیات تک ضرورت نشته ورته اوکے چې چا نیز کې مسله ده چې څوک صحیح دی هغه به فل راځي نو دي ته پته لګي ها اوس چې دی دا وداوت جمپ شو او چې څوک جمپ سریزي هغه به داسې زی اچھا اوکے دیکھیں سکواټس هم راغلل جمپ هم ورکی راغو سکواټ هم راغو فل باډي کارډیو دا اوکے بهترین ایکسرسایز دا اوس د دې فرست ایکسرسایز شو ها د دې نه پس چې دا فرست ایکسرسایز مونږ دې ته کو دا لګ ګران دی څوک په چې دې نو پورا 20 مونږ سره نشو کول 10 بکای نو 10 دیو کی 12 دیو کی خپل باډي ته دی ګوري ها او چې کم کولی شي الریډي ایکسرسایز ضروري 20 دیو کی 30 دیو کی هغه شانت دی بیا سیټ کنټینیو ساتي او ساتي خدا فرست ایکسرسایز شو سیکنډ ایکسرسایز مونږ داسې زو دې پوزیشن کې فرنٹ او بیا دا سایډ فرنٹ اچھا دوانه سایډ اوس دا ګوره سایډ تم راغو ایبډومن تم راغو سایډ اوبلیکس اور ایبډومن فل یعنی خیټم پکې ټارګټ تا او چې دی دام پکې ټارګټ دی دام ورکی ټارګټ دی اوس دا چې دی 20 بعد یو سایډ کمپلیټ کړي اوس چې موږ دوانه دا پوزیشن چینج کړو دا 1 شو اوکے دی پوزیشن دا 1 کې کاونټ دا 2 چې دوانه سایډ چینج شي مې نه دا وا
अला 1 काउंट कीगी हाँ Okay. 20 रिपीटेशन बद दे तरफ की 20 उमदा बदिया के double शांति side बा दिबल तरफ हम कई Okay. हाँ दा देम एक्सरसाइज शो ब्या वमुंगा जू द्रेम एक्सरसाइज तरफ था द्रेम एक्सरसाइज की कदी सर कोर की वेट वी डेरा का खबर अदा वेट पर आवाली का वाटर बॉटल आगा फुल कई आगा दर आवाली पदी पोजीशन की उस गुरी चिकम मुंगा सेकंड एक्सरसाइज मुका आगा हरियो का easily कोई बिल्कुल रिलैक्स थे नवर के बैक हिट कीगी खुगीगी और द इंजरीज खतरा दा न द नीज थर्ड एक्सरसाइज के न द बैक द इंजरीज खतरा दा और न द नीज दी पोजीशन के बजी दम इजी उमला वाला कसानिम कविश बेस्ट इजी टोली कोलेशी उस चिसुक वेट जरजी उम्बा दा पोजीशन अखली कसुक विदाउट वेट जी उम्बा दा पोजीशन अखली खाजा कोलता स्लो स्लो रवानन जर जर जी खदाबत तेज कवे ठीक शो हाँ दी पोजीशन की बजी दा दी शो Third थर्ड exercise. एक्सरसाइज और दबा द्रे सेट कई दुए द्रे सेट्स पकई उस पमुंगा जो लास्ट फोर्थ एक्सरसाइज था फोर्थ एक्सरसाइज ऑलरेडी जक जी वडू की रिपीटेशंस की दी वडू की स्टेपिंग देवर के नो आगा कदी 30 स्टार्ट वाखली नो आगा दी पार देर खदे आई के बा दा फुल बॉडी कवल वालू ब्रेक न पस बहुत दखल ठीक शो जी कतुन को दमा वाले पस दागे ब्यारज वह हाँ मुझे हाँ जबरदस्त हर साथ हमें तो पदे पोएगी पीपे हम पे स्वीट लगी सुमरे स्वीट शायरी दा नन सब बजे दगी विशान गाने दुम राव रमा सरे की चिरे अच्छा जी मंगा थर्ड ना फोर्थ लास्ट Fourth exercise आओ जी। अगर मंगा को राजे गुरु नोट के साथ हाँ फोर्थ एक्सरसाइज शुरू करना दी पोजीशन के बॉडी लगल शांति डाउन कई बॉडी बड्डीला साथे ठीक शो और पट्टोस चिका में पंज दी पंज माने में मिने दीजी और दी पोजीशन के बाद चिकल द्वाना लेग चेंज की नु दी 1 काउंट कई उस दी पोजीशन के दी 20 ना 30 कोलेशी हर रिलैक्स दी पोजीशन के बाद दीजी 20 ना 30 रिपीटेशन द 33 सेट्स और जो कम सीनियर्स वी कमाल एक्सरसाइज की 34 35 और या चिदा से न कहीं नो 40 सेट्स 3 लगोलेशी 50 सेट्स 3 लगोलेशी दा जमुंगा लास्ट एक्सरसाइज दे विदाउट वेट हम कोलेशी विद वेट हम कोलेशी दी के बदी फल जान तो पूरी फुल बॉडी फॉर योर टाइम मान दी हिट कीगी दा जमुंगा दा उस दा से उका दा से अल्ट अभी कैमरे तमक खदा ओके लकदा से दा साइड बानी चता उस कवे हाँ, ना उस चिदी से रस्ता दा टोज रावली पति कर हाँ उस चिदे जी मुंगा पसाइड मान दी कमो को उम्दा का शांति वो बॉडी ढीला कई और पदी फ्रंट मान दी वाला ओके डन हो गया पपन जुमान दी बजी फुल बॉडी बा मुंगा पपन जुमान दी पंज सातु बता एक्टिविटीज कवे नु चिकल द्वाना लेग चेंज कीगी 1 बा कंटिन्यू कीगी 1 बा काउंट कीगी दी और वेट पा आखिरी जान सरी वेट पा आखिरी जान सरी हेवी मगस्टीशी लाइट मगस्टीशी डिपेंड कई चिद दी एक्सरसाइज कम लेवल ली कर दी एक्सरसाइज लेवल हाई वी नो दीज आंसर दी हेवी वेट उनिसी गडीया नॉर्मल और जो बिल्कुल बिगनरी आगे तो वेट लेवल जरूरत निशा और चिकम मॉडरेट लेवल भी 2 kg 3 kg बस दा काफी दे दा जमुंगा लास्ट एक्सरसाइज दे जबरदस्त जी उस दा जमुंगा उस में मीना कार्डियो एक्सरसाइजेस मुंगा उशु अब दा एक्सरसाइज ने जो ताउस हंसा खोल दा द्रे सेट कवे 30 20 दुम सेट्स के बैक मतलब फर्स्ट डे मान 20 उकल या 30 उकल पर सेकंड डे यो सेट ज्यादा की थर्ड मान बिया ज्यादा फोर्थ मान बिया ज्यादा बस 4 डेज एक्सरसाइज दे आई ना पसिमा कंटिन्यू कवई टिक शो और कपमेंट्स के और की चापरे खुन ब्या दी हां 4 डे वाला कंप्लीट की आओ हां उस दा उशो में मीना दिन पसमुंगा दी द आर्म्स एक्सरसाइज कयू चिटोली कोलेशी आओ आसानम भी कि हर यो इजीली कोलेशी द आर्म एक्सरसाइज दी ठीक दा सिर्फ द आर्म एक्सरसाइज दा वखी भी या दे जेनु के दा वखी भी अक्सर दी लका मेंबर्स दा कंप्लेंट के जमुंगा दा जेना सेगिंग शुरू की या इंटेंसिव लका डाइट की और एक्सरसाइज नहीं सर बॉडी लूज नो आगे से सुशी ची बॉडी लूज शी नो ची बॉडी लूज शी द आई ल पर दा डेर ख एक्सरसाइज दी और ची सुमरे दी स्लो रोटेट के जो बोलता जर जर लग गया है मा ची सुमरे दी स्लो रोटेट के दी तो के फायदा दा उधर सम दर्द की 20 दी वन साइड की और 20 दी सेकंड साइड की उस ची सुक सीनियर जी आई ऑलरेडी की दिशी दा कड़ी दी जका ची कॉमन एक्सरसाइज दे डेर खला के कई वेट बहुत सर रावाल ना आई वेट रावाल आगे ची सुक वेट सरी की आई बस स्लो जी और 12 रिपीटेशन कितने बस दला सुना नहीं चाप दे जे कट कल करना चाहिए बसंती हां वाले सीनी का ना लसुन दे जे की कट दुख खबर उस मैं मीना ची उस वेट से रिजीन 12 रिपीटेशन टिकते 12 क्लॉकवाइज और 12 एंटी क्लॉकवाइज शुरू में ख्याल दा वख बड़े रिजल्ट टारगेट की हो हर यो कसी स्टार्टिंग के वेट सरी नशीनी वेल जका ची अगर सिर्फ आर्म्स अखपलम रोटेट की दा बला प्रेशर वाड़ी हां दा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओशो हां दा सिर्फ द आर्म्स एक्सरसाइज शो
اوس په دې نه پس مونږ هغه خلکو ایکسرسایز به پهلو خو مونږ سټانډینګ کې ولاړی مونږ چې مې کار راغون شي نو هغه خلکو ایکسرسایز به خو چې کم مونږ سره سینیئرز دي او ای په فلور ایکسرسایز نشي کولی د بیک یا د لیگز مسلې وته ٹھیک شو او یا چې د ایج زیاتی مطلب 60 70 80 نو آی لپاره 80 والا خو خیر آی ایکسرسایز ډیر زیات چینج شي خو 60 70 75 پوری خسته کولې شي خا آی کې بچ دې مونږ مېم بال سره بزو ٹھیک شو اور دې پوزیشن کې با فل داسې ځان روټیټ کوو اچھا ٹھیک شو اوس دا لکشانتی کتو باندې کو آسانی خدا دې ګران د 2020 دی 3 ایکسرسایز ډیر په مزه باندې وتا سو دا سرکل اخلي چې خیمه کا هغه وی بریک ورکه نه جی ها 2023 ون ساید کلوک وایز اوس دې کې انټي کلوک وایز بیا به بالکل سلو راشي دې سره فل باډي راخلی کی فل باډي میم اب بیک هم شو arms هم شو abdomen هم شو د abdomen فرست والا پارت ټول ورکه راغو اوکے دا د فرست ایکسرسایز شو دی چې کله کوي دی ته پته ولګي هو کوشش پدای چې دا لیگز نه دی لیگز ډبل دی اوپن ساتي چې دا څومره اوپن کنا نو د دی بلور باډي سټیف بیلنس وي او سټیف وي ان ختی وي نو دی اپر باډي روټیټ کولې شي دوه طرف ته فرست ایکسرسایز دا یو شو سیکنډ ایکسرسایز ودی سټانډینګ abdomen crunch لګای هائی نیز پوزیشن کې دا crunch د سره نه باغی چې نو په فلور باندې راځي نه املا خوږي نه به کونډه خوږي ډیر پسانه باندې ودا ایزی ایکسرسایزز دي وخت په لمزان ته ګوري او باډي به خسته هټ کیږي ها اوس دې کې چې کله مونږ ایکشن باندې زو ایکشن کې مې مینا بریث اوټ راځي چې کله مونږ ایکشن کو ایکشن کې بریث اوټ مطلب دا زما ایکشن شو بریث اوټ سبل تو واسو بریث اوټ دا څه وځي ځان چې پتا ځان پرشتیا سو باسه لکه دا دې ته وای دا نه تاسو ځاله په مرغلي شو تور د سو باسه هڅاوي چې سو باسه او یو خبره ده مینا موسم یخ شو دی چې کله بریث ان کوي دی بس سلو کوي کدي تیز کوي نو دا ټول پوز باندې به سوځي کوي وینه راځي پہله بس سوځي کوي دا وینه شروع شي دا د ټول کیږي دا چې څوک بریثینګ تیز کوي بریث ان چې کله تیز کیږي نو دا ځنه ټول خشک شي د دې بده خیال ساتي چې بریث ان بس سلو کوي بریث اوټ په تیز کوي ٹھیک شو بریثینګ کوم ټیکنیکس دي ها اوس دې دا سایډ ول ایکسرسایز دي کی دا څه کوي دا مکه بیا ویني سوک سټاپ کوي نو دې کې بل خیال ساتي مطلب دا چې د انجریز نه بځان بچ کی او خپل ایکسرسایز خپل بریثینګ ایکسرسایز دی فل باډي وسره سټریچ کیږي دا چې دا سایډونو باندې غوخي وي او دې سره بالکل ویل کیږي خدا دا بول ضروری دی هم صدا به وي وسره بال چې چا سره وي خډه راخلا چې چا سره اغه دی وداوت بال لاړ شي ویټ سره ان پلی شي مړ کې ویټ سره ان پلی شي ها دا د هغه خلکو ایکسرسایزو چې مشران دي کوم مشران او د دې اوس لاست ایکسرسایز بمغه چې لور باډي مرکه راشي لک شانتی کوارټر ته بزي او بیا اپ لک شانتی کوارټر بیا اپ لک شانتی کوارٹر بیا اپ اوکے یو کال معلوم ہنسا جی ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم میڈم وعلیکم السلام سوک میں پہاڑ سے بات کر رہی ہوں کشمالہ جی کشمالہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ میں نے کہا آپ لوگ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہم بہت بہت شکریہ کشمالہ آپ ہمارا شو دیکھ رہی ہیں آپ کو پسند ہے بہت شکریہ اس کے لیے بہت بہت کیٹو کے پروگرام اور یہ سب پروگرام ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے اچھا اچھا کیٹو کے پروگرام سے آپ دیکھتی ہیں جی جی کیٹو کے خیبر شہر کے یہ سب آج کا شو آپ کو کیسے لگا اچھا مجھے یہ آپ والا شو اچھا لگا ہے اور وہ دوسرا اس کا مشی خان کا اوکے تو ہمارے شو میں آج ہم اب ایکسرسائز دکھا رہے ہیں آپ نے کچھ سٹیپس فالو کیے ہاں جی میڈم میرے یہ پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی نا تو یہ میں نے آپ کی وجہ سے دیکھ رہی تو انشاءاللہ میں بھی کروں گی بس آپ کے پاؤں میں آپ کی ایج کتنی ہے جی کتنی عمر کی ہے آپ 45 اچھا 45 تو کیا ہوا ہے پاؤں میں کیا ہوا ہے مسئلہ کیا ہے جی کیا مسئلہ ہے آپ کو پاؤں میں پاؤں میں بس اصل میں الیکشن کی ڈیوٹی پہ گئی تھی اور وہاں گر گئی تھی تو اس کی وجہ سے اچھا 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 تو ڈاکٹر کو دکھایا کچھ ایکسرسائز کچھ تھراپیز وغیرہ بتائیے ہاں جی بس وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اس میں لیس ختم ہے اور یہ وہ بات بس ڈاکٹر تو اپنے فیس بڑھانے کے لیے اور یہ ایکس رے اور یہ صحیح بات نہیں بتاتے ہاں یہ بات تو اب میں کیا اچھا تو وزن کتنا ہے
जी वजन वजन मोटापा कितना है? वजन 94 kg। ये बात कर मेरे भाई से, फिर मैं करूंगी। चले भाई को फोन दे दीजिए। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हाइट हम तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू पुख्तो देर मदार तासु प्रोग्राम दा फोड़े मुझे गोलू देर खुशहाल शलू ढेर ज्यादा हर प्रोग्राम देर मदार दा ढेर ज्यादा शुक्रिया जी। तासु इसम शरीफ से दे माजी नजर हुसैन नमादस और फला फुटबॉल की लड़ी है फॉरवर्ड के बेबा मुकाबले में शहीबाज की आल पाकिस्तान देर मैच ना मुकड़ी की। अरे माशाल्लाह, फिर तो आप चैंपियन है हमारे। मोहम्मद भी 63 साल है जी। अच्छा जी। जी, अच्छा, जी। आपकी बहना जो तो- अभी बता रही थी, तो उनकी हाइट कितनी है? एक की हाइट जो है कोई 5 फुट तक है। अच्छा 5 फुट तक है, तो फिर तो इनका वजन बहुत ज्यादा है ना। ये मेरी बहन है, ये तो चल इतनी नहीं सकती क्योंकि गिर गई है ना, कोई 8 साल हो गए। अच्छा 8 साल। तो 8 साल हो गए गिरी हुई। अभी इसका वेट भी ज्यादा हो गया। शौक है इसको कि प्रैक्टिस कर, वो नहीं कर सकती। चले वो हंसा अभी थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेगी, ठीक है ना। ये अभी देखा है ना इनका मैडम का, तो मैंने बहुत खुश हूँ। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिस्म के लिए बहुत अच्छी है। अभी मैं जैसे यंग लड़का हूँ, 63 साल उम्र है, मेरे बेटे नहीं दौड़ सकते मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन देखो तो आप ये आप बहुत- आप स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हो ना, तो आप ये सारी एक्टिविटीज कर चुके हो, इसलिए आप माशाल्लाह हेल्दी फील कर रहे हो। नहीं जी, अपने आप को कोई भी हो ना मेरी बहन, तो कम से कम फिट होना चाहिए। ये पेट नहीं ज्यादा होना चाहिए, इंसान का बीमार हो जाते हैं। इसके साथ 1000 बीमारियां लगती हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो हम बूढ़े हो गए हैं, दंद गिर गए हैं। पर यह कि दौड़ने में बहुत ज्यादा हमारी स्पीड थी। मैं राइट आउट खेलता था, तो शाहीबाग में आप पाकिस्तान बहुत मैच खेले हैं, स्टेडियम में, सदर ठीक ठीक ठीक। कयूं स्टेडियम में। जी जी। तो माशाल्लाह। हमारे लिए कोई खिदमत है ख्वार से, तो आपके प्रोड्यूसर, आपके चैनल को सलाम। आपके प्रोग्राम जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन देखती है, हमेशा शौक से देखती है। फिर मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपके प्रोग्राम बहुत देखती है, शिरोमा माँ से देखती है आपके प्रोग्राम, तो फिर लगी रहती है कि बहुत अच्छे प्रोग्राम है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आप हमारे शोज देखते हैं और आपको पसंद है हमारे शोज। बहुत अच्छे हैं आपके शो, तो ये वन है आपके, तो जो प्रोग्राम भी देखते हैं वन आ रहे हैं। तो माशाल्लाह ये प्रैक्टिस वाला आप जो दे रहे हैं, तो ये हर औरत के लिए अच्छा है। घर में औरत करे आराम से। बिल्कुल, वो घर बैठे खवातीन के लिए हम लोगों ने सेगमेंट्स रखे हुए हैं ना। हाँ मैडम, आपको अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन ये आमीन मेरी समेदा। बहन है, घर में आप भी मेरी बहन लगती हैं। ये मेरी बहन है, 6 बहनें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वाले साहब ने 4 शादियां की हुई है, तो बस उनमें बहनें ही रह गई है। और भाई कितने हैं? भाई सब फोर्स हो गए कि भाई मैं रह गया हूँ। वाले अल्लाह- साहब ऑफिसर से, बस स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, वो भी फोर्स हो गए। अनियत भी फोर्स हो गई। बहन डॉक्टर थी पिशौरी डिवीजन में। अल्लाह आपको जिंदगी दी, क्योंकि बहनों को भाई बहुत अच्छा लगता है। और कभी बहन ख्वार मेरी बहन जब भी ख्वार कभी आना, तो हमारे लिए गरीफाने में चक्कर लगाओ, लाजिम। ये नंबर अपने पास रख लो। जरूर, कोई चीज की जरूर। जरूरत हो इधर से, हमारी बहन लगती है, हमारी बहनें हैं सब। आप इंशाल्लाह आपके जरूर। जितने प्रोग्राम भी हैं बहुत अच्छे हैं, हम देखते हैं शौक से। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके गुफ्तगू का। इतना मजा आया माशाल्लाह। इतने सुमरा ख्वान कई का ना चिकल दा मशरान ता अप्रिशिएट कई और सा तारीफुना कई ढेर ज्यादा मनना और हंसाश्ता खा दमा वाले ग्राउंड को तुमको पजा गई बिया राजी हंसा हंसा मुंगा दे अगी अंटी खबरी वोरे दले आओ जी। कि अगी विचे एजे 40 दे او هغوی وی چې ګوټنه تقریبا اته کاله مخکې هغوی وی چې راغورځېدلي دي. او جی. نو هغوی ته هم دغه مسلې زم چې اول به هغوی ته هم لږ هلکه پلکه اکسرسایز بیا صحیح موږ ده. خپل نارمل راشو. ها صحیح ده چې د دې ایج زما خیال 40 که 46 داسې سي یاد کړل 46 سے زما او په جی خیال داسې سي یاد یاد کړل نو هغه د پاره مونږ چې فل حال دی بالکل لکه ناسي سي اکټیویټي نه کوي سي ایکسرسایز بالکل د دې نشه نو دې د پاره مونږ بالکل سمپل ایکسرسایز خو دې سایت وکینم چې کیمرا کې دارا شي دې سری کو تولیا مونږ بل ته بند یوز کو کدي سره ځان له بیا بعد کې بند اخلي بندم ټیکته کتولیا ور سری تولیا باندې متلی شي داسې دی واچي لوپټر باندې متلی شي دی پوزیشن کې با دا هیلز داسې بیک ته کوي او پنجه به مخ کې کوي بیا به ریلیکس داسې به کوي بالکل ریلیکس بیا فرنٹ زی او بیا به داسې ریلیکس زی ٹھیک شو بیا فرنٹ تا بیا داسې ریلیکس دی پوزیشن کې به دیږي 12 ریپیټیشن دی 3 سیټس کی خپل اپر باډي به داسې سټیټ کو ساتي او لوور باډي به صرف روټیټ کوي ٹھیک شو فرسٹ والا دی داسې کی ٹھیک شو
सेकंड वाला दी बिया दा 12 3 सेट्स विदाउट वार्म अप विदाउट स्ट्रेचिंग पल कोलिश उस दी पोजीशन के दाउ शो दा सी लेग्स होल्ड सातले शी नु टिक तक ने सातले वाल सपोर्ट वाले जक चाहिए 94 वेट खेलो नु दी पोजीशन के उम्दा का रिपीटेशन बकई डाउन तरफ तब हील की बिया फ्रंट अप बिया डाउन पंजों को आपने ऐसे आगे और पीछे की तरफ कर देना डाउन बिया अप च ददी जे कम मसल्स ददी च दा स्ट्रांग शी नु नीज बे खपला कार शुरू की टिक शो कना ददी टोला मसल दाई च मसल्स वीक शी नु द नीज च बैक मसल्स वीक शी नु नीज बिया फंक्शन सही ने शिकोले हंसा दी हुई च डॉक्टर आते हुई च वो पानी खत्म है उदा दी और आउ जी लिगामेंट्स कना दी लिगामेंट्स यादी नु चिकल मंग लान दी मसल स्ट्रांग को कना नु खपला बाहर से कंप्लीट शी और लिगामेंट्स की यो मसला दादा कना छि चिकल इमोशनल यो इंसान खपल जान न स्टेबल कई मतलब स्ट्रेस वगैरह दाशे ने डी रखली नो लिगामेंट्स लग शांति वीक की गया जुड़ी गी ना खपला हो चिकल इंसान जान खुशहाल साथी हो खपल सही खपल रूटीन की जान बिजी साथी खपल जान अगर यो नेचुरल प्रोसेस ते खपल जान कवर कई नो दिल पकार दे खपल जान बिजी साथी खपल नूर दगा की जान साथी सोचने डी न कई खपल जान खुशहाल साथी नो लिगामेंट्स खपल जुड़ीगी नेचुरल प्रोसेस से खपल जुड़ीगी और चकम एक्सरसाइजेस मुंगा दी तो खेल दा एक्सरसाइजेस दी शुरू की बगैर स्ट्रेचिंग वार्म अप दा एक्सरसाइज रेगुलर कई आओ चिकम मुंगा दी त मैसेज के कम एक्सरसाइज खाई अगर दी रेगुलर सातली चीज का चाहिए रिपीटेशन मुंगा दी त कम खाई नो अगर दी रेगुलर सातली 12 पर 3 सेट्स 12 पर 3 सेट्स और चिकम में पूरी दी दुमरा एबल शी भी नहीं चाह नो एक्सरसाइज की नो दा कोलेशी ओके इजिंग दी और रिलैक्सम दी और खास आने तरीके से दी कोलिशी बिल्कुल अच्छा जी उस मंगा वो च द चा वेट स्टक शी द चाची वेट्स स्टक शी मैम आगे की चीजें डेरे खबर राजी सूप चीदे लका डाइट कई और आई की मेंस की किलिंग की मतलब मेंस के वर्क की फास्ट फूड जंक फूड बेकरी दाशे न और की उखरी ना आगे से रसो शी हार्मोन स्टोर डिस्टर्ब शी जे हार्मोन्स डिस्टर्ब शी आगे वेट स्टक की यो दगदार आ अच्छा लका डाइट कई और मेंस के बके किलिंग की मतलब डाइट की खुराक शुरू की आओ चीवर के खुराक स्काक शुरू की खपल डाइट मान कम फोकस दीनी वाली आई ने लगा खुशी अगर चदे सुशी च हार्मोन्स टोल डिस्टर्ब क्या योगो की रवानी आ टोल डिस्टर्ब शी अगर हार्मोन्स च डिस्टर्ब शी अगर वेट स्टक की यो केस दादी द्वेम केस दाई चाहिए खूब नहीं कंप्लीट जो खूब न कंप्लीट कीगी आई द वजनम वेट गेन कीगी स्टक वी हो चिकम प्लानिंग जमुंगी अगर प्लानिंग की नजी हां बिया द्रेम दगदारा शी चे मतलब मुंगा स्ट्रेस वाखलू द आई द वजनम दा केस राजी बल खबरदार आज ची फोर्थ तारा जी चिकम एक्टिविटी दी कई अगर डेली यूज की दीरा वाली एक्टिविटी की चेंजेस न कई इंटेंसिव तनजी या एक्टिविटी की चेंजेस न राजी आई द वजनम वेट स्टक कीगी आई द पर जरूरी दादा छे दीवा खची दासिकल एक्टिविटी की चेंजेस मतलब न राजी और वेट्स वर्स स्टक शी न आई द पर मंगो यूस एक्सरसाइजेस बुखायू और बल खबरदार छे दीबा प्रोटीनम ज्यादा और दीबा फाइबरम ज्यादा खपल खुराक के जे प्रोटीन और फाइबर ज्यादा की और वर्सरी दाई एक्सरसाइजेस चिकम स्किपिंग वाला दी उसको जरूरत हम दीपा स्किपिंग माने दासिंग प्लेशी स्किपिंग रोप सरी ठीक शो बिया हाई नी स्किम प्लेशी ठीक शो दा एक्सरसाइजेस दा सीधी दा को जरूरत के लका मतलब दा जिद्दी फैट सुम नरमई जिद्दी फैट सुम नरमई और दा को जरूरत कम खेम खुदा फास्ट हुई दावा फास्ट गई और दावा 10 मिनट्स यो एक्सरसाइज की या टूल एक्सरसाइजेस दे 10 मिनट्स शुरू की नुददी बा वेट रावांशी वापस ओके हजमंगो सो न्यूट्रिशन बिल्कुल न्यूट्रिशन हवाले से मैं मुंतदा द दी तबदा खबरू खुराक ते चे सर मुला न्यूट्रिशन हवाले से सिर्फ दी तमंग द कोकोनट बारबेक्यू आयु चे कोपरा जकचे मौसम खुश्क ते और स्किन हम खुश्की गी लग्या दे ठीक शो नदी तमंग दा वही चे द कोकोनट यूज दिखाई द चा चे लका द एलर्जी मसले सो के हर यो का से नशी खोड़ेगा ना चे सो के खोड़े शी आई द कोकोनट यूज कई the like 10 to 11 टाइम की दी यो स्पून कोकोनट ऑयल ची अखली तो अगर एपिटेट लेवल ची कम भी द लोगे लेवल अगर दी कंट्रोल कई जो अगर कंट्रोल की दी तब लोग अडे रजन न लगी फैट बर्न के डी ज्यादा 10 साल की थोड़ी सी मतलब 10 न 11 बजे टाइम की दा खस्सा टाइमिंग दी और या कद चार रूटीन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट की आई दी हर वक्त यो स्पून अखली 3 स्पून अखली नो अगर वजन बद दी एपिटेट लेवल कंट्रोल दीबा उगकेगी ना द दीबा फैट बर्निंग रवानी और द चिक्सो की एक्सरसाइज के आई द पारदा जरूरी दे शे प्री वर्कआउट चे दे दियो स्पून वाखली एनर्जी बूस्टर ओम दे हाँ ददे ना अलावा चिसोक वर्कआउट ओकी और दाई न पस ददी जान ले लका जूस शांति जुड़कड़ी का कोकोनट लक शांति और वो क्या चुली या कोकोनट सादा प्लेन दी ता खस्ता प्योर वाटर मिलोशी अगर दी उसकी बॉडी फुल फौरन दे अगर कवर कई नु डेर ज्यादा खरी कोकोनट यूज दी कई फैट बर्निंग के वेट लॉस प्रोग्राम के हम डेर ज्यादा खरी दी तो बखपल पतो लगी स्किन हम डेर खकई
नोर बॉडी फंक्शन हम तो ग्रोथ और रगादार समस्या से की दे बखपल जान की चेंज जुगरी देर जात खदी अगर दीदी यूज की राव खुराक फॉर्म के यानी खुराक की फॉर्म के दासिम पड़ी जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू सो मच कूल डाउन तासु खपलाओ क्या तासु हंसा खुदली च टाइम कम दगनी कूल डाउन ममुगा तासु खुदलियो हो नेक्स्ट पर इंशाल्लाह बे प्रॉपर दी तखाली थैंक यू सो मच हंसा ये फंडो को नन मुगा प्रॉपर एक्सरसाइज दी बल्कि हर जल प्रॉपर हुई को नवे एडिशंस पे की गया ज्यादा फन पे दमा वाले ग्राड बदे वेलकम बखैर आगले स्टडी मशे जी और सिंह जमाई द ब्रेक न पास पा मुसर मुगा मेहमान भी जी ब्यूटिशियन हम दा सोशल एक्टिविस्ट हम दा मुगा वदा दावी चिनन सबा एस्थेटिक एक्टिविटीज हम सर दुई शुरू करी दी माशाल्लाह नो अगवी कना फुल पैकेज मुग सर दिल तो मौजूद दी होता सो हम कवेशे जदी सलोन्स तकलेशे दगा प्रोसीजर्स वगैरह कवेशे जुबिया आमिर मुग सर दी तो वेलकम को बखैर आगे अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप ठीक ठाक मैं ठीक आप कैसी हो अल्लाह का शुक्र पुख्तो लगा और चीजें वो कम तो पोस्ट कम पुई के पे आओ खैर तासु जवाब बिल्कुल बिल्कुल के इस इशू निश्ता जुबिया जी अवल खुदवाई कैरियर हम सिंग शुरू करे दे 2004 में जी मैं अपना कैरियर स्टार्ट करियो और बस लग कार ना माशाल्लाह नन उड़ू की सेटअप ना माशाल्लाह गट सेटअप जो बेशक आप उर्दू में जवाब दे दो ताकि आपके लिए इजी रहे अच्छा तो ये बताए जब कसान मंग जिन कह चुका सबक और डिग्री और सवाली नबी आगे तो अवल खुद को रही भी दा बजोड़ेगी नुजुबिया सरदा हो चेहरा ना डॉक्टर बजोड़ेगी वकील बजोड़ेगी हाँ जी बिल्कुल मुझे अब यही कहते थे कि आप लॉ पढ़ें और आगे जाके वकालत करें तो मैंने कहा नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है अच्छा क्योंकि मैं आर्ग्यू बहुत अच्छे करती थी ना वालिद साहब के साथ तो वो यही कहते थे आगे जाके ये बनो लेकिन ये है कि जब मैंने चूंकि मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ और अभी चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे बैठ के एक चीज नोट की कि जहाँ स्किल की अहमियत है कभी जितने भी एम्बेसडर आए यूएसए के आए हैं कि यूके के आए हैं उन्होंने हमसे स्किल पूछी तालीम किसी ने नहीं पूछी एग्जैक्टली और आजकल दौर ही स्किल्स का बिल्कुल स्किल्स का दौर है बिल्कुल ऐसा ही है जी नो द मोर प्लार खिलाफ लाड़े तो अगर चा खबर है ब्याह कर लियो और ज़ैत सड़ी उरे सी करना बेउमा का मोर प्लार दे बिल्कुल ऐसा ही है बहुत रिस्पेक्ट नहीं उन्होंने मुझे मैं उनके खिलाफ नहीं गई लेकिन उन्होंने कहा आप जो मर्जी करना चाहें फ्री हैंड दिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी सेटिस्फाई है मेरी वालदा बहुत खुश होती है मुझे देख के और काफी दुआएं देती है शुरुआत जो कजिन्स बाने पे दोनों के अगीला मैंने अपनी भाभी पे शुरू किया था न दागे सब ब्राइडल मेकअप हो और बस कोर के में आगत तो तैयार कोल में लग में वाला चल बंदे उस जमाना तैयारी की ता मां बांधे चल रिश्ता करे दे मतलब फुल टाइम फ्री दा हो हां जी फ्री लॉन्ग टाइम चाहत के भी ना लाइफ टाइम वो शुरू की मेहमान है ना मेरे साथ शुरू के करती रही हूं उसके साथ ठीक अच्छा दारा तू है कि मुंग बस सोशल एक्टिविटीज में हमराजू बट मुंग वाबल तासो बिजनेस साइड पर आशो बिजनेस के क्योंकि यो एंटरप्रेन्योर या तासो द वजन डेरो कसानो त दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सस स्पेशलिटीज दिस तासो और चूंकि एस्थेटिक हम तासो असर शुरू कर दे मैंने आज से 6 साल पहले एक हाइड्रा मशीन पे काम स्टार्ट किया था ट्रेनर आई थी कराची लाहौर से तो मैंने उनसे बाहर से दुबई से भी आई थी तो मैंने ट्रेनिंग ली अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे केपी में क्या पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे ट्रेनिंग देते हैं माशाल्लाह एस्थेटिक हो गया लेजर हो गया हाइफो मशीनें जितनी भी टेक्निकल काम है वो सब मैं करती हूँ और आप सिखाती भी हो सिखाती भी मेरी बहुत बड़ी एकेडमी है ठीक किस नाम से आपकी एकेडमी ग्लॉसी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी एंड क्लिनिक है मेरा अच्छा वहाँ पे भी अगर कोई नया बच्चा बच्ची आना चाहते हैं बिल्कुल आए तो तो क्या डिस्काउंट चलेगा फ्री चलेगा क्या सीन होता है वहाँ पे ऐसा होता है कि इस तरह तो हमारा 1 वीक का भी कोर्स होता है 1 मंथ का भी होता है 3 मंथ्स का डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं हमारे अच्छा वो बेस डिपेंड करता है जैसे अभी किसी ने हाइड्रा एक्सपर्ट होना है तो उसको हम 5 डेज में ट्रेन कर देते हैं हाइड्रा पर पिंजोरो जो जी बिल्कुल लेजर में हम 2 डेज में 3 डेज में ट्रेन कर देती हूँ फ्रीक्वेंसी क्या है पल्स क्या है उन पे हम सारी पूरा बूट देते हैं और मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऐसे नहीं कि मैं उठ के भी सिखाती हूँ मैं तो टेक्निकल काम सिखाती हूँ लेकिन उसकी जो बारीकी है वो बाकायदा डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन सर्जन से मैं पढ़वाती हूँ बिल्कुल ऐसा है लेकिन थोड़ा हम इस शो के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि आई डोंट नो कि एचआरसी वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ब्यूटिशियंस को हाइड्रा करने दें उन पे बड़ी पाबंदियां हैं
असल के जमा په خیال د ما خبره شي چې کله خوي जिसका फील्ड उसी को साजे ना बिल्कुल। نو زما په خیال هغه ځکه په اعتراضات راغی چې د لپاره پراپر سبقونه ډیپلوماز یا شی بل شی नहीं नॉन इन्वेंसिव दे कि इंजेक्टेबल सीजन निश्ता चे सो के इंजेक्ट कई लग या दे या खुदा न खास्ता दे साइड इफेक्ट इस सब निश्ता शुक्र हमदा दे के खुदा एब्रिजन दी या स्क्रबर दे उस मास्टर मशीन दे मॉइस्चराइजर्स दी नहीं मॉइस्चराइजर निश्ता दे के इसमें वो जो पहले से क्लींजिंग वगैरह सारी वो चीजें तो करते हैं क्लींजिंग अलग आप क्रीम से करते हैं ना ये मशीन के खुदा दे चाहिए एब्रिजन स्क्रबर और हाई मतलब यो दसे टूल्स दी बिल्कुल बेजर टूल्स दी और बेनिफिशियल क्लाइंट दा पार दी ओके तो चले देख ले सिर्फ د دینه د ډیرو په फायदा وش داس کو بیا ډیرو ته مسلې جوړی کړې دي کنه बिल्कुल ठीक शो खड़ा हुआ है सलोन्स के सिग्नेचर सदी सिग्नेचर्स मेरा हाइड्रा बहुत मशहूर है, लेजर बहुत मशहूर है, पीआरपी मेरी बहुत मशहूर है, आईलैश एक्सटेंशन एक्रेलिक्स ने हमारे बहुत माशाल्लाह शुक्र से बड़ी दौरान दे बहुत एक्रेलिक्स ने हमारे बहुत इन जा रहे हैं कुछ हद से ज्यादा हर सिर्फ ताज को ना हर यो सलोन के एक्रेलिक ने एक क्रेज चला हुआ है अजीब से बिल्कुल यो शौक थे बिल्कुल ऐसा क्रेज है ना कि मैं हैरान रह जाती हूँ। कल मेरे पास 8 क्लास की बच्ची ने मुझे कॉल करके कहा, मैंने सुबह मैंने कहा आप 8 में आपको स्कूल में कुछ नहीं देगी, कहती कहीं ना मैं तो लगाऊंगी मेरे नाखून छोटे छोटे मेरी फ्रेंड्स के तो वो एक मैं तो ये नहीं कहती क्योंकि 20 एज या 18 एज आजकल तो ये लोग वो पौधे से निकलते हैं, उन बच्चों को भी यही शौक है। 12 साल 16 साल के बच्चे भी कहती हैं कि हम सब काम करवा लें। अवेयरनेस ज्यादा सोशल मीडिया ढेर ज्यादा अवेयरनेस। अच्छा तो एक्रेलिक नेल्स दे लैश थी लैश एक्सटेंशन हाइड्रा फेशियल मेकअप भी माशाल्लाह मेरा बहुत आउटस्टैंडिंग काफी इन जा रहा है माशाल्लाह। खडेर माशाल्लाह। तासु ये पकम जे के तासु दा क्लिनिक मेरा क्लिनिक जो है ना गुलबहार में गुलबहार के हाँ गुलबहार नंबर 2 में बहुत बड़ी माशाल्लाह एक्सपेंसिव ठीक नन से बदा मैक्रो आईब्रो चदी मैक्रो नीडलिंग पीआरपी आईब्रो टिंटिंग सब कुछ हम करते हैं। सेफ्टी बिल्कुल क्योंकि देखो लगी का ना देखो मैक्रो देखिए उसमें नहीं उसमें नीडल होती है जिसमें हम फिर भी वही मैं वहीं पे आऊंगी कि इंजेक्टेबल काम हम कुछ नहीं करते, नॉन इन्वेंसिव काम है ये। नॉन इन्वेंसिव में ये आ जाता है कि हम खुद अवॉइड करते हैं, जैसे ड्रिप्स नहीं लगाते हम लोग वो लोगों को ये भी बड़ा वो चढ़ा है ना कि हम सफेद हो जाए ये स्पिन वाली ड्रिप ना वाकई स्पिन बिल्कुल ऐसे हाँ कई बिल्कुल बेनिफिशियल है। चूंकि मेरी जगह पे तो डॉक्टर और सर्जन दोनों अवेलेबल हैं तो वो लगवाते हैं बाकायदा बहुत सेफ साइड पे, बल्कि एजिंग एंटी एजिंग ड्रिप्स हैं, स्मार्ट करने वाली ड्रिप्स हैं। स्मार्ट करने वाली बिल्कुल है। तो वो क्या मतलब सेशन वाइज आप लोग स्मार्ट करेगा? 5-6 ड्रिप्स में काफी स्लिम हो जाता है क्योंकि आपका अंदर जो कमी है वो विटामिन पूरी कर देती है और आपका मैदा जो है वो डिमांड नहीं करता कि मुझे बार बार भूख लगे। लमा फर्स्ट टाइम वोरदल द स्पिन वाली खुमे वोरदल چې स्पिन वाली ड्रिपोनेशन में कमजोर की दो वाला बिल्कुल ऐसी है। ये जो एंटी एजिंग के लिए है, अगर आपने देखा हो बुशरा अंसारी साहिबा जो थी वो एक शो में लगा भी रही थी एक जगह पे जाके कि एंटी एजिंग वो बहुत बेनिफिशियल है। आप और सबसे बड़ी चीज अगर लोग तो इसको जिस सेंस में भी ले वो दर्दें खत्म कर देती है। अच्छा दनोर चिकम विटामिन एंटी एजिंग जो है ना तो उसमें वो विटामिन है जो आपकी बॉडी में जो कमी होती है उनको पूरा करती है। अक्सर खलक वही कहना चाहिए 25 प्लस जो है कोलेजन्स वगैरह अगश्तल शुरू के करना पाउडर लका टैबलेट्स के दुम आसानी के सुमरा पाउडर फॉर्म बिल्कुल पाउडर फॉर्म में और इंजेक्टेबल दे के ज्यादा फायदा दे के। अच्छा अगर हम इंजेक्ट क्या बेजाता बिल्कुल इंजेक्ट ओके भाई दा नवी नवी शई नदी ज़खो पाउडर अखलमा कोलेजन चिकन हम द दे ज़्यादा अखलमा लोकल से चलेगी बाहर वाला दी खुदाई चे दागे ढेर ज्यादा बेनिफिट्स थी नेल्स दा विख्तो के स्पेशली बिल्कुल देर ज्यादा खदे खुदे न ज्यादा सोचे खपल फेस यानी एक काम होता है बॉडी के अंदर काम होता है, एक होता है बॉडी के बाहर काम होना। तो दोनों लपारा यो मुंगो चे एंटी एजिंग द खलक जी लगे न मुंगा बतावे चिपता सु पीआरपी कवे खपल ब्लड सर्वाइवल अगर देर ज्यादा बेनिफिशियल दे रिंकल्स पोर्स हर से खत्म है। ओके पीआरपी बारा के बहुत नूर मु आयु कोई ब्रेक न पस चाहे पीआरपी से कम बेनिफिट्स और सुमरा टाइम पूरी दी ते मिलावेगी जी यो दमा वाले ग्राउंड कतुन को पस दागे ग्यारह वेलकम यो सली बाद ब्रेक न पस तवायु हर कले और मुंगा खबर कोली पीआरपी बादी ची पीआरपी बेनिफिट्स से दी बीआरपी तासु ला सुमरा टाइम पूरी फायदा दर के तासु
डेड स्किन लरी कई तासु जदी सिंग तासु ची रिंकल्स तासु लची दी खत्म बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेशली दी जेनु की शक्ल अगर डीप्स द सिकंद जोड़ी शी अगर ची तासु लगी इंजेक्ट के नागजीन हमरा की बाकी आप खुद बताएं। पीआरपी जो होता है बेसिकली आपके ब्लड से ही व्हाइट सेल्स को निकाल के आपके फेस पे समझे आपने कमांडोज डाल दिए हैं, एग्जैक्टली तो वो आपकी स्किन को रीजनरेट करते हैं और एक बड़ा अच्छा सा आपको रिजल्ट में ग्लो आना शुरू हो जाती है। आपके जितने रिंकल्स होते हैं या आपके पोर्स रहते हैं काफी कोलेजन को बूस्ट करती है, आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है। तो महीने में अब तो अगर आप लंदन बेस में या कोई ऐसी चीज देखती हो ना तो वो लोग तो अपने घरों में खुद कर रहे हैं। हाँ उन्होंने वो मशीन ली हुई है, मशीन ली हुई है और एक पेन लिया हुआ है और वो खुद घरों में अब करने लगे। हमारे पास अभी बच्चियों को ये अवेयरनेस नहीं कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आप देखें कि डेंगू या कोई ऐसा टाइफाइड वगैरह होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, व्हाइट सेल, तो उससे बॉडी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो अगर हम लोग यही व्हाइट सेल को निकाल के इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी स्किन में डाल के और डायरेक्ट उसको हम लोग इंजेक्ट भी करते हैं और एक पेन मिलता है जिसमें माइक्रो नीडलिंग पेन उसको बोलते हैं, डॉक्टर पेन, उससे वो आप हल्का हल्का करते हैं तो वो स्किन में अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। और 10 उम्र टाइम पूरे ता गया 1 मंथ में एक दफा आप करनी चाहिए। वन या 2 मस्ट है, 2 मस्ट मंथ के बाद दा कोल ड्रेस ज्यादा जरूरी है। जरूरी है सर स्किन डीर ज्यादा खस्ता जी, ग्लो राज बिल्कुल, ग्लो तो किम की गिदे भी खुद बिल्कुल पारम इख्ता होता पारम डे खई चिकम खलको दा इख्ता ग्रोथ ने कीगी और आजकल तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा है हर dry सेकंड। weather है। डेफिनेटली ड्राई वेदर भी, और मैं ये कहना चाहूंगी कुछ प्योर चीजें नहीं है, शैम्पू प्योर नहीं मिल रहे, बहुत सारी फेक चीजें हैं, बच्चियां समझती नहीं है। और सबसे सेकेंडली जो बच्चियां आजकल आती हैं छोटी छोटी, हमने स्ट्रिक्स करानी है, हाईलाइट्स करानी है और एज तबाही हो जाती है। तो देखिए जैसे जहर को जहर मारता है वैसे केमिकल को केमिकल ही खत्म कर सकते हैं ना। और उसके बाद आफ्टर केयर ये लोग करते नहीं है। आपने स्ट्रिकिंग के हाथ, अच्छा लोकली जाके 4000 की जी स्ट्रिकिंग करवा रहे हैं, 5000 की, ऑब्वियसली वो तो जला देते वो हैं। आपके बाल जल गए हैं, उनके ऊपर कलर नहीं आया, उनको ऑक्सीजन नहीं दी गई, उनको वॉश के दौरान उनकी केयर नहीं की गई, तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल तो होगा, डैमेज हो जाते तो हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। आती हैं बच्चियां, मैं पूछती हूँ ये काम किए, हाँ जी वो तो हमने 3 साल पहले, उसके बाद क्या किए वो उनको नहीं पता होता कि हमने बाद में भी कोई आफ्टर केयर करनी होती है कि नहीं। क्योंकि आजकल तो बालों के लिए बोटॉक्स और पता नहीं ब्ला 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 कितनी चीजें आई है। बोटॉक्स हो गया, ब्लो आउट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आप अगर केमिकल इस्तेमाल करें, मुझे अगर कोई आके कहता है ना कि नहीं वो फलाने का है कि हम लोग ये यूज करेंगे तो उससे साइड इफेक्ट नहीं है, मैं कैसे नहीं है, हर एक चीज की है। मैं पहले बता देती हूँ कि सुन्नत रसूल है भी, आप बता दें पहले, मैं बता देती हूँ कि डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप आफ्टर केयर कर सकते हैं तो देन बेटर, ओके आप करवा सकती हैं। अदरवाइज आपका अगर आपके दिल का जोर नहीं कि आपने यही 2-3 दफा हेयर वॉश, तो आप फिर रेडी रहें कि बाल सर पे नहीं जमीन पे होंगे। ऐसे ही है इवन तासु इंस्टेंशंस लगा है ना, अगर इंस्टेंशंस हम यो तरीका दा यो केयर दे जिने कसानो लगे यो अगर बिया प्रीख नहीं जैसे गोटे गोटे जाखे जाखे दे या सर खपल हेयर लॉस हम खटिक टा खुशी का ना। मुझे 20 इयर्स हो गए इस फील्ड में और मैं अभी भी कहती हूँ मैं सीख रही हूँ, हर दिन आपको एक नई सीख मिलती है। ऐसा ही है। और मैं ये समझती हूँ कि समटाइम ऐसे ऐसे नाम नहीं ले सकती, ब्रांड्स हैं जिनके मैं सुनती हूँ कि बच्चों ने कहा कि हम लोग तो यूट्यूब देख के, और साफ बोलती भी है कि हमने यूट्यूब से सीखा है। हाँ मैंने कहा फिर आप लोगों ने सही सीखा है। अच्छा जी ब्यूटी को पखफल ज़बानी माशाल्लाह, बल्कि दीस वीडियोस दी मुंग सर राजा अगबुरु चुकी दी हाइड्रा याद अकड़ला नो चुकी दी च दी च दी स्पेशलिटी दा अग हाइड्रा फेशियल के जो हाइड्रा फेशियल पकमी तरीके आ कसान जी ने पेजनी हाइड्रा सिंग की हाइड्रा तरीका से दा हाइड्रा एकदम ताले यो ग्लो दर की यो फ्रेशनेस दर की इस्ता मख्च दे अग बिल्कुल नीट एंड क्लीन शी जमाख पक दुमरे तजुर्बा दे ची अक्सर जमा फेस बांधे अग पिगमेंटेशन मलाजमा गुंदे राशि अब चीज़ आगो का मनो आगे न फौरन पर जमा फेस बिल्कुल चली यो ग्लो राशि आगे बिल्कुल कहीं भीगी वसरे। आप एक दफा हमारे पास आए, जरूर इंशाल्लाह आऊंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। तो बलोच भाई हमारे पास वीडियो ताकि मैं दूसरे उस पे चली जाऊँ। अच्छा डाउनलोड की चलिए डाउनलोड मुझे माते भी हुआ है। अच्छा जिसको हम कह सोशल एक्टिविटीज चूँकि माशाल्लाह तासु चैम्बर की होंगी एटिक शुन वसरे वसरे चूँकि हले जले दा एक्टिविटीज दा की गए जनानों दा पार स्पेशली डेट जात की गई बस तासु दा द खैर खैगड़ी दा करुणा सिंगल स्टार्ट को वलम स्टार्ट कर बस लास्ट ईयर मां टिंडियो तेर करे दे एज ए वीपी और ढेर ज्यादा में वर्क करे दे दाटो चैम्बर डेर तारीफों ने कही था सो डेर में मतलब मां पल कारोबार तबेखी बेटाटा मुखलिस रही हो। बिल्कुल 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 बहुत मुखलिस रही हूँ और बहुत ज्यादा ऐसी वर्किंग, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और मैं हैरान हूँ कि हमारी खवातीन को अभी इस ये फैशन की सारी अवेयरनेस है
लेकिन जो उनके लिए जरूरी है वो अवेयरनेस नहीं है। जो उनके राइट्स है, बिल्कुल, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके लिए फंडिंग्स आती हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी अपनी गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है, हमारे लिए बाहर से भी बहुत कुछ आता है हमारे लिए, मतलब हमारे फंड जो और आता कहाँ है और जाता कहाँ है? आई डोंट नो। उसकी एक रीजन है ना कि खवातीन अभी तक उसी दायरे में ही बंद है। अगर हम लाहौर और कराची, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारा सूबा बहुत पीछे है, हमारी खवातीन बहुत टैलेंटेड है, बहुत, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग, बट सपोर्ट नहीं था, राय नहीं है, सपोर्ट अच्छा, नहीं है। आजकल जो मेरे तजर्बे में है, बिल्कुल सपोर्ट भी है, खुद नहीं चाहती हूँ आगे बढ़ना। उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको एक धक्का चाहिए, धकेलना पड़ता है, निकलो निकलो, आपको ये, आप में ये खूबी है। दुमर मुदो जंग होता लगे दिली का ना कि उसको साफ करने में भी टाइम लगता है। एक दफा ये समझें कि हम क्या हैं, अपनी वर्थ को समझे, खुद समझें कि आप में खुद क्या है, आप खुद क्या कर सकती हैं। ऐसा ही है कि हमारी माएँ हो गई या हम लोग हो गए, हम लोग भी तो घरों से उठ के आए हैं ना। ठीक है, बिल्कुल अपने लिए फाइट की है, बिल्कुल अपने लिए फाइट की है, और हमने इस माशरे से फाइट की है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बैठे थे, वहाँ के एम्बेसडर ने कहा कि केपी इज अ बैकवर्ड। नो, मैंने कहा सॉरी सर, स्टॉप इट, आप नहीं ऐसे बोल सकते, हम बैकवर्ड नहीं है, हम लिमिटेशन में है। ट्रू, हमारी लिमिट्स हैं, हमारे बाप दादा ने एक लिमिट्स लगाई हुई कि आप जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते, हम करना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहिए, हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन उस लिमिट्स में भी रह के हम बहुत कुछ कर रहे हैं। That's true. और सुबह में तो काम हो रहा है, लेकिन हम लिमिट्स में रह के बहुत कुछ कर रहे हैं। गोरा जमुंगा चो गोरे फैसिलिटीज कम दी, वसाइल कम दी, सब चीजें बहुत कम है, कुछ कल्चर के साइड से कुछ बैरियर्स है, कुछ अगर बावजूद हम कुमुंगा जमुंगा जनाना माशाल्लाह देर से कई लगी दी और देर मख के दी। मैंने बहुत विजिट यूएनडीपी की तरफ से मैंने एक्सपोजर्स की हैं, बट मैं वहाँ सुबह से आई हूँ, वो दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं। मैं यहाँ पे मॉर्निंग शो में वो ऐसे लोगों को लेके उन्होंने हाईलाइट किए कि किंग बना दिए, जिनको बेसिकली देखे जाए तो उन ब्रांड्स को काम भी सही नहीं आता। लेकिन यहाँ पे वो ब्रांड छुप के गली कोने में बैठे हुए हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर उनको सामने लाया जाए तो वो पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में छा जाए। जुबैर जी कुतासो के जमुंगा कल्चर सुमर रिच थे, और कल्चर के सुमर सिकीगे लग्या दे जमुंगा चिकम दा लास्ट कारून रावाले दा सुमर ज्यादती को मुंगा सिर्फ दगम हाईलाइट को जमा पे ख्याल मुंगा टिकटॉक दीदी सर मुकाबला करो। बिल्कुल, और जमुंग सोशल मीडियम दे के देर स्लो दे वो बनिस्बत, मतलब जैसे मैं चाह रही हूँ ना कि मैं ये जरूर चाहूंगी कि जैसे वो मुकाबले कराते हैं, ब्यूटिशियंस में कराते हैं, कुकिंग में कराते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे एटीवी वाले या पीटीवी वाले, इनको चाहिए कि केपी के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। और दगजे के दास कोशिश न लगा दामुंगम बेर कड़ी हुई का ना खो मगस्ता सो खबर है लबजराशम जो वो दबा के बैठी हुई है, छुप के बैठी है, उनको धक्के देने की जरूरत दास देर जेन मुंगा को इवन अक्सर मुंगा दल तो वही चीज मुंगा यो शो के दल चाहिए कि मुख्तलिफ पार्टिसिपेशन हो यो शो नागेला बखज न रात लले नहीं घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो दगे दवा जने मुंगा का सेगमेंट से दिनो कवर अप करगन गरीदा से मुंगा आइडियाज रख करू स खबर मान खोशते दी जमुंग चैम्बर के जे द लास्ट टाइम द वजीर आला यो प्रोग्राम वुमेन डेज बांधे का ना मुंग जे डीसी साहब सरनास तो एडीसी उसमें मुकरम सर देर खजी न कई दी, हां देर खजी न कई दी मुंग नास इनविटेशन वर करे मा वतरे ता सुदा पके दावत बोले न कवे सीधा खवातीन लगा मोटिवेशन के राशि के मुंग दा गठले दे मुंग मखतलेशु इस आइडिया दे खदा अब मुकाबला करे दा यकीन कवे चे आहो नन सोलो पिंजा खसान दसी दी दलता रसीदली देखो नो जे खोई मच दा मोटिवेशन दा पारा दैट इज डे खदे जरूरी का ना की पके लका डेफिनेटली चे खजो तदा पतो लगी चे मुंगा दोना काबिल यू मुंगा दा गटली शू इनामात अगश्ती शू मुंगा खपल खपो बंदे मख के कार कोले शू दा चे कंपटीशन चे कना आगे के योग स्पार्क बेजस बजियाती डेफिनेटली दमा खलो पजदे ब्या पदे माने खबर है तेरे को मुंग सरे उसे निशान रोख की निशान में सिलेक्टेड सॉन्ग वक्त दा पिंडी मिंडी में न देखो। अच्छा जी खबर की द जनानो पर राइट्स माने खबर की द जनानो पर इज्जत माने खबर सिंह चोस माशाल्लाह जी जी खबरों के जदा से ढेर से जनानो ले चुमगा कलो च कंपटीशन दे और पागे के असे हम जनाना माशाल्लाह पदी के लग रहा चेहरा ज़दीन हो गटम ज़दीन हो गए ना कंपटीशन शु वाकई दास के ब्या को मुंगा दास से कवल डेफिनेटली मुंग बताओ सो टच को ब्या मुंग सर पूरा पदी की मदद कवे
او موږ لا بیا ماډل یو جنہ کې ارسه بیا را کوي را बिल्कुल दो न मसला نه دا هفته کې یو ځل هم تاسو دا یو پروګرام کوي نو ډیر به کامیاب بس دنده بس موږ باغ زړه یادونه بیا واپس را बिल्कुल 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 تاسو د څه کوي کنه چې یو هفته باندې تاسو سلیکټ کې نیکسٹ پوزیشن کې تھرڈ کې لاړ شي نو ډیر خبري दाने बलोच भाई जुबिया जी को कस के जो है तो अपने साथ कांटेक्ट में रखें हम लोग और इंशाल्लाह इस तरह करेंगे हाँ जिनको लवसो आए चिकम जमदा यंगस्टर्स दी दा चिकम अक्सर फारिग शी और वगी बिया देर से कवल गाड़ी खुने शी कवल नो जम अगली लकम दा से बिजनेस पकारी चाहिए मैं हर यंग बच्ची को ये कहना चाहूंगी मेरी खुद बेटी 16-17 इयर्स की है और उसने मैट्रिक जब किया तो मैंने उसको सारा कोर्स करवाया एस्थेटिक के अच्छा हालांकि उसकी एज छोटी थी लेकिन अब मुझे इतना बेनिफिट है कि वो अपनी अभी पढ़ाई भी कर रही है और अपना कमा भी रही है दैट्स माशाल्लाह मैंने उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया एक्रेलिक्स ने इसके माशाल्लाह उसके पास 5 क्लाइंट उसके अपने होते हैं अच्छा उसने वो सीखा हुआ है मैंने उसको सिखाया है मैंने उसको एस्थेटिक का भी कोर्स करवाया हाईक्यूएल वालों की चूंकि हम लंदन बेस्ड कंपनी है वो आई थी रिक्वेस्ट करके मैंने कहा इसको टेक्निकल मशीनें सिखाएं ये कैसे चलती हैं क्या मैं कहती हूँ मैं सम टाइम उसको देख के खुद भी हैरान हो रही थी कि ये इतनी छोटी सी उम्र में इतना माशाल्लाह अच्छा कर रही है और नस्ल डेढ़ शार्प थे और मैं ये कहूंगी कि देखिए तालीम बहुत जरूरी है उसको ना छोड़ें लेकिन तालीम आपको बोलने का तरीका माशरे में चलने की सलाहियत देता है लेकिन स्किल जो है ना वो आप अगर एक रोड पे भी बैठेंगी तो आपको बेनिफिट देगा आपको भूखा रहने नहीं देगा नहीं आप दुनिया के किसी कोने पे भी जाएं और ये मुझे चैम्बर ने सिखाया मैं कहती थी अक्सर मैं कहीं बोलती थी कि मुझसे कोई तालीम का भी तो पूछे लेकिन स्किल्स का ही पूछा गया तो मैंने उस चीज से पिक किया हालांकि पहले मैं स्टार्ट में कहती थी मैं अपनी बच्ची को इस फील्ड में नहीं लाऊंगी बस मैं कर रही हूँ बस ये बच्ची है बड़े डॉक्टर बने क्योंकि उसकी सारी कजन माशाल्लाह स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो ये छोटी है तो सब कहते हैं ये भी डॉक्टर बने डॉक्टर बने मेरा बेटा बड़ा सिविल इंजीनियर है या दूसरा तो मैं नहीं अब वो बिजनेसेस कर रहे हैं उनको मैंने 7 स्किल्स सिखाई हैं कि आप लोग और ऑब्वियसली जॉब्स में 50-60,000 में तो महीना नहीं गुजरता ना और बिजनेस में ये पर डे के हिसाब से होता है और अच्छा पर डे अगर बच्ची 10-15 हजार पे अपना कमा रही है तो इनफ नहीं है और 2 लाख 1.5 लाख रुपए अगर महीने का सेकेंड ईयर की बच्ची कमा रही है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता अपनी फीस भी उसको मैंने अपने कदमों पे खड़ा कर दिया वो दुनिया के जिस कोने में भी जाए काम कर सकते खुद अपने पैरों पे खड़ी बिल्कुल तो मैं आजकल की बच्चियों को ये लाजमी कहूंगी कि ये दिमाग से माएँ भी बातें निकाल दें कि हमारी बच्ची या पार्लर का काम सीख रही है या वो एस्थेटिक का काम सीख रही है व्हाटएवर कोई भी स्किल सीख रही है चाहे वो सिलाई सीख रही है या वो ड्रेस डिजाइनिंग सीख रही है और आजकल जो बात हमने वक्त वक्त को ओ दा वो दा जुड़ी उस कुछ दे दा टूल लगा चाह खबर मॉडर्न जॉब्स की राजी का मॉडर्न और ऑब्वियसली अगर बच्चियां आजकल की अगर कामयाब होना चाहती हैं वो बिजनेस करें बिजनेस वुमेन हर सूरत में कामयाब है अच्छा यो बल्शि मा कतले खलक अक्सर सलॉन्स दा सॉरी बुटीक्स और दा शने की बट जरा सोच को जी बुटीक्स न ज्यादा चिकम बिजनेस के फायदा दा अगर सलॉन्स दी बुटीक्स में अगर डिजाइनिंग वो अच्छी कर रही हैं देखिए मेरी हमेशा ये चीज होती है कि आप हटके काम करें बुटीक के बलक टाइम लगी अगर पॉलिश के दो के मशहूरी दो के डे टाइम लगी सलोन इस दाई अगर हर चैनल सब जरूरत बिल्कुल जरूरत हम दे और सही स्किल लेके सीखें सही काम सीख के करें ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर से करके और फिर आप किसी का नुकसान कर दें क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है exactly. हम लोगों के साथ लोग अक्सर बच्चे हैं जो आजकल कामयाब है मैं कभी भी लेग पुलिंग नहीं करती मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छी बात है हमारी सीखी हुई बच्ची अगर हमसे ज्यादा कामयाब है तो हमारे लिए काबिल फख्र बहुत वो एक माँ और एक उस्ताद का भी खफा नहीं होता कि उसका बच्चा कामयाब हो तो मैं ये बच्चियों को कहती हूँ कि आप लोग जरूर इस फील्ड में अगर जरूरी नहीं ब्यूटी कोई भी स्किल है कोई भी स्किल है चाहे वो गेम्स के हवाले से आगे जरूर बढ़े अच्छा अच्छा सो सरा क्लासेस अगर शतल गवाड़ी नो आया दा ऑनलाइन वी दा फिजिकल वी और आया दी दा सिंगता सु कने 3 days हम दी 4 days हम वी मंथली वी वीकली वी दा से नो दे फी चे दे अगर से इस तरीका कार दस चलिए एजुकेशन सुमरे पकार दे नहीं ब्यूटिशियंस के लिए तो मैट्रिक ठीक है और एस्थेटिक जो मतलब हाइड्रा मशीन या पीआरपी या आईब्रो टिंटिंग लिप टिंटिंग के लिए ये मैं कहती हूँ एफएससी होनी चाहिए क्योंकि नीडल्स कितने उसमें जानना है या आपने क्योंकि उसमें भी तालीम इसलिए जरूरी है कि उसके जो टूल्स होते हैं उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी पल्स और इनमें जाके अगर थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने वाले बंदे हो अव्वल तो मैं कहती हूँ मेरे पास 6 क्लास की बच्ची भी खड़ी हो तो मैं उसको भी सिखा दूँ ठीक 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 डंडा भी ला के दे उसको भी सिखा देती हूँ उस्ताद की डिमांड करती
तो और सबके एक डिफरेंट प्राइजेस है, फीस डिफरेंट प्राइजेस हैं। और मैं अभी जो मैंने अपना बहुत काफी बड़ा सेटअप किया उसमें मैंने एक बाकायदा एक पार्ट ऐसा बनाया कि जिसमें हर हफ्ते क्लासेस चलती रहीं। अच्छा। हर हफ्ते बच्चियां कुछ ना कुछ मुझसे सीख के जाएं। ठीक। और उसमें कुछ मैं फ्री कर देती हूँ, कुछ मैं कंपनी से स्पॉन्सर लेके करती हूँ कि भाई कुछ आप बेनिफिट दें। ऑब्वियसली हमारे भी तो खर्चे ही होते हैं, लाइट और रेंट वगैरह, और उस्ताद जो खड़े होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वो तो 1 घंटे की 5 मिनट की फीस 2-2 हज़ार चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा। तो मैं उनसे पढ़वाती इसलिए, वो मुझे कहते हैं तुम हमें किस फील्ड में ले आई हो। मैं कहती हूँ सर आप लोग पढ़ाएं, इनको एजुकेट करें। ताकि ये ब्यूटिशियंस ब्यूटिशियंस को सिर्फ मेकअप पे नहीं रखना, इनको एजुकेट करें कि ये स्किन समझ सकें। इनके पास अगर कोई स्किन आ रही है, फेशियल करना है या इन्होंने कोई भी काम करें, कम से कम इनको ये एजुकेशन होनी चाहिए कि आया मैं किस पे काम कर रही हूँ और कौन सी प्रोडक्ट पे कर रही हूँ। एग्जैक्टली। तो फिर वो बड़े खुश होते हैं कि तुम्हारी सोच अच्छी है। बिल्कुल, ये तो बहुत मस्ट है। एक ब्यूटिशियन कैसे सोचे समझे बगैर एक स्किन पे काम करेगी? नो, नेवर मेक। और दा घटा खबर में जब आता हर योजे के तखपल पावर खोडिश जब भाई मैंने कोई एवी शैवी से नहीं सीखा, मैंने सही प्रॉपर एक बंदा सर्जन है, एस्थेटिक में मास्टर है, ये है, मैंने उससे सीखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। और एक जब तक आपको समटाइम ऐसे चीजें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और ऐसी बच्चियों से सुना है कि भाई स्किन की लेयर्स कितनी है, तो वो ऐसे मुंह को देख रहे होते हैं। मैं आपका इतना बड़ा सैलून है, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, आपको ये नहीं पता लेयर्स कितनी, तो आप कैसे काम कर रही हैं? और कौन से लेयर को आपने टच करना है और कौन से को नहीं करना, आपने किस लेवल पे जाना है और कौन सी प्रोडक्ट आप यूज कर रही हैं, उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, कौन सी नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। ये इसलिए मैं ये क्लासेस अरेंज करती हूँ और डॉक्टरों से पढ़वाती हूँ कि कम से कम स्किन सुन लो कि स्किन क्या है। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। और तुमरे डिटेल वाइज शो गोरे यो सलोन वाला नजी जो सुमरा माशाल्लाह तासु डिटेल वाइज चीज लग गया तासु अगवे त चा स्किन सर लो बिना करे बिल्कुल बिल्कुल। और जो कम स्टूडेंट राजी नो आगम च देनो यो सही प्रॉपर ऑथेंटिक क्लासेस अखली का ना। आई थिंक जो भी मेरे इससे पढ़ के गया ना माशाल्लाह कामयाब काम कर रही हैं। और वो यही कहती हैं कि मैडम अब तो हम इतने एक्सपीरियंस हो गए ना, आपने जो हमें 2-3 चीजें हम देखते ही कह देते हैं नहीं ये स्किन इस काम की नहीं है। मैं एक वर्ड कहती हूँ सॉरी का। एक स्किन पे आप लालच ना करें, आप उस स्किन के पे नहीं समझ रहे, आप उसको रेकमेंड करें डॉक्टर को, आप उस पे तजर्बे ना करें, एक्सक्यूज कर दें। आप भी पैसों के लिए कहते हैं ना दा बदा सुशदा अच्छा लेने के अब एक सीवियर एक्नी है वो हम नहीं कर सकते, वो आप डॉक्टर को। मैंने एक स्किन एनालाइजर रखा हुआ है ना अपने पास, जिसमें मैं पूरे पाकिस्तान में वो 2 आए थे, एक मेरे पास एक कराची में एक। तो जब मैंने ये लिया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तुम क्यों ले रही हो, इसमें तुमने क्यों पैसे बंद क्या फायदा होगा? मैंने कहा देखो इसका ये बेनिफिट है, जब मुझे स्किन की जांच पड़ताल हो जाती है, जैसे आप अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं ऐसे वो स्किन को डीप में जाके बताती है कि आया इसमें है क्या, कितना आपको कौन सी चीज तंग कर रही है, आपको एक्नी निकल रहे हैं, अगर आपको अंदर का प्रॉब्लम है, आया ये स्किन का प्रॉब्लम है और आपकी स्किन किस चीज से इरिटेट हो रही है। तो वो डीप में एक आप समझिए कि पूरा एक्सरे कर देता है वो स्किन का ना, मशीन पकार रहा है। बिल्कुल ढेर पकार रहा है। तो उसमें मैं ये कहती हूँ आप इसमें फेस रखें। आप अगर इतने पिगमेंटेशन लेके आई हैं तो मैं क्यों अपने पास से रेकमेंड करूँ। वो फिर डॉक्टर बैठी होती है उसको मेडिसिन लिख देती है जो पाकिस्तान में उसके मुताबिक उसके फेस के मुताबिक। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। डेर खान को डेर अगवे का ना तफसीली और डेर अगर डिटेल वाइज गुफ्तगू करा और दे के दा हम पता होशे कि असल और नकल हम पता लगेगा, जेन्युइन पता लगेगा। माशाल्लाह स्टाफ सलोन दे स्टाफ एस्थेटिक क्लिनिक्स थी नाल तासु ना खल क्लासेस हम गश्ती और प्रॉपर चिकम सिंग दी हुई दी हाइड्रा दी माशाल्लाह स्पेशल द मेकअप नेल्स हर साल तक की हो एस्थेटिक क्लिनिक हम दी सरे दे डेरा मनना इंशाल्लाह जुंदो खैरी कलम गुलबहार से दर अगलम खामा खाबदन यो फेशियल अखलम इंशाल्लाह तासु राके माली इजाजत पदे तमा च सबब इंशाल्लाह बिया मंगा हाजिरी गु दने मिल मनोसरा او د تاسو کالز به هم خلونن خو مونږ وانه غشتو انشاء الله کمن کې به بیا خامخا خلو اجازه راکړي الله پامان